Good morning, 9th class students. How are you all? Hope you all good at your home. So welcome back to the video series of chapter number 2 of computers. So in the last video we have discussed what is class and some topics related to the class, that is how to create an object of a class. So in this video we will discuss some questions. So number one question is class as an object factory. How can you say that the class is a object factory? So factory, what does factory mean? So factory is used along with class for created similar kinds of objects. These objects share common characteristics and behavior. So what is the meaning of factory? Factory is something which is used to create something. फैक्ट्री एक ऐसी चीज़ है जो किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है. तो वी कैन से दैट येस क्लास इज़ अ फैक्ट्री बिकॉज क्लास से हमें क्या मिलते हैं, हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं. वी कैन प्रोड्यूस द ऑब्जेक्ट, सिमिलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एंड एज वी ऑल नो दैट दीज ऑब्जेक्ट्स शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर. और इनके क्या होते हैं? कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर. When an object is brought into existence, this process is called instantiation. अगर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और उसकी एग्जिस्टेंस होती है, that process is called a initiation, instantiation. Okay, so there is a little bit confusion about the pronunciation. Instantiation. Okay, so what is next question is class is a user defined or composite data type. How we can say that? Class को कौन बनाता है? Class is defined by the user और इसको हम लोग composite data type भी बोलते हैं. So Java language uses some predefined data types such as integer, float and character. These data types are also known as primitive data types and provide preliminary facilities in Java programming. So just before the existence of a user defined data type से पहले we have a predefined data types. Predefined data types are those data type which is defined by the सिस्टम, जिसको सिस्टम बनाता है, यूज़र नहीं बनाता है. वो कौन कौन से हैं? इंटीजर, देन फ्लोट, देन करेक्टर. दीज फ्लोट, करेक्टर एंड इंटीजर, दीज डेटा टाइप आर ऑल्सो नोन एज अ प्रिमिटिव डेटा टाइप. इनको क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव और प्रीडिफाइंड. क्लियर? बट द थिंग इज ये सिर्फ बेसिक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं. जावा प्रोग्रामिंग में सिर्फ बेसिक के लिए यूज़ किए जाते हैं. बट व्हाट इन दैट केस, अगर हमें बेसिक से कुछ ज़्यादा चाहिए हो, इन दैट केस अ यूज़र में क्रिएट अ डेटा टाइप एंड डिक्लेयर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक एंड बिहेवियर विद इन इट. यूज़र, अब जब यूज़र को इंटीजर, फ्लोट और करेक्टर से भी ज़्यादा कुछ चाहिए, उसके लिए द यूज़र हैव टू क्रिएट, उसे खुद क्रिएट करना पड़ेगा एक डेटा टाइप जिसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे एंड बिहेवियर उसके अंदर होंगे. हमें भी पता दैट वी हैव अ क्लास, इन दैट क्लास वी हैव अ characteristics and behavior. So this can be done by using a class. That is the reason why class is referred as user defined data type. Clear? So next question. Object is an instance of a class. Each object, what is object is an instance of class. How can you say that? Each object is created from a class called an instance of that class. Creating an instance of a class is sometimes refers to as a initiating the class. Clear? जब हम लोग क्लास से कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, दैट मीन्स हम लोग उस ऑब्जेक्ट उस क्लास का क्या क्रिएट कर रहे हैं? वी आर क्रिएटिंग अ इंस्टांस ऑफ दैट क्लास. Clear? So one more important thing, that is a program
which is on page number, I really don't know what is that page number, but question number 14, it's the last question. So write a program. This is the last question of your question answers back exercise. There is the last question, I don't know the page number of that one. So write a program by using a class picnic. अब आपको दिया है that you have to make a program with class name picnic, with class name picnic, without any data members but having only functions. बट देयर इज़ ए कंडीशन, आपको डेटा मेंबर्स नहीं लेने हैं इसमें, आपको सिर्फ क्या लेने हैं, फंक्शंस. क्लियर? सो क्लास का नेम क्या होना चाहिए? योर क्लास नेम वुड बी पिकनिक, void display 1. देयर इज़ अ फर्स्ट फंक्शन और अ बिहेवियर जो कि क्या प्रिंट कराएगा, वेन्यू, प्लेस एंड रिपोर्टिंग टाइम. क्लियर? void displayed 2, that means your function number 2 और a behavior 2 क्या करेगा, to print number of students, name of teacher, accompanying and bus number. So in the first function display 1 there will be 3 things to print. Number 1 venue, place and reporting time. 3 चीज़ें इसमें प्रिंट कराओगे आप. In the second function display 2 to print number of students, strength of the students, name of the teacher with the number of students and the bus number. So 3 things you have to print in this. So let's make a program. So write a main class to create object of picnic and call the function display 1 and display 2. So next your class name. क्लियर? ओके. ओपनिंग ब्रेस ऑफ क्लास, जब भी आप कोई क्लास क्रिएट करते हो द नेक्स्ट थिंग यू हैव टू ओपन दैट क्लास, क्योंकि आप जितनी भी चीज़ें लिखोगे सब क्लास के अंदर होंगी. नेक्स्ट योर डिस्प्ले 1 फंक्शन. डिस्प्ले 1 फंक्शन void, void इज़ अ डेटा टाइप, पब्लिक इज़ अ access specifier. सो कितनी चीज़ें हमें प्रिंट करानी थी, वेन्यू, प्लेस, रिपोर्टिंग टाइम. सो 1 2 3. सो देयर आर 3 प्रिंट स्टेटमेंट्स. वेन्यू क्या है, दैट वेन्यू सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, दिस इज़ द आउटपुट स्टेटमेंट जो कि प्रिंट करवाती है. इट्स वेन्यू इज़ रंगोली गार्डन. सेकेंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन स्टेटमेंट, प्लेस इज़ MG रोड. System dot out dot print ln. Third is reporting time is 9 AM. So this is the public. ये यहाँ पर ख़त्म हुआ. That means ये किसके अंदर आता है, ये किसकी बॉडी है, ये 3 स्टेटमेंट्स किसकी बॉडी के अंदर आती हैं, पब्लिक, void, display 1 function. Clear? So next move to the second function, that is display 2. 3 things, number of students, teacher name and bus number. So first is system dot out dot print ln, number of students are 50. Again system dot out dot print ln, name of the teacher Mrs. Kiran Sharma. System dot out dot print ln, bus number is this. So this is the body of your second function name display 2. Clear है? ये यहाँ तक हुआ. अब हम ये चीज़ करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डू दिस थिंग, दिस राइट अ मेन क्लास, राइट अ मेन क्लास टू create object of picnic and call the function display. I hope you remembered that how to create object of a class with the new operator. So let's create it. So this is your public static void main function. This is start from this point. Your class name, object name, new object name. Class name is picnic. obj is your object name, new picnic. I hope आपको remember है that we have already created with car. It's Honda, Maruti and Nano car हमने create किया था just like that. obj
डॉट कॉल कर रहा है किसको, ये वाला ऑब्जेक्ट है जो पिकनिक क्लास का ऑब्जेक्ट है, वो किसको कॉल कर रहा है, सबसे पहले डॉट ऑपरेटर की हेल्प से डिस्प्ले 1 फंक्शन, और बाद में किसको कॉल कर रहा है, डिस्प्ले 2 फंक्शन. सो दिस इज द स्कोप ऑफ योर मेन फंक्शन. एंड ये क्लोजिंग ब्रैकेट किसकी है, योर क्लास. तो दैट मीन्स ये सब किसके अंदर आता है, योर क्लास. सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम. क्लास, दिस इज योर प्रोग्राम. दिस क्लास पिकनिक, 2 फंक्शंस, मेन फंक्शन, ऑब्जेक्ट क्रिएशन. उसके बाद obj1 ने डिस्प्ले 1 को कॉल किया, डिस्प्ले 2 को. चलो अभी इसको रन करते हैं. सो हेयर इज़ योर आउटपुट. ठीक है, बट इसमें कुछ चेंजेस करके दिखा रही हूँ मैं. देन सपोज अब यहाँ पर obj ने सिर्फ डिस्प्ले 2 को कॉल किया. अब सिर्फ क्या प्रिंट होगा, स्टूडेंट नेम, टीचर नेम, बस नंबर. क्लियर, देखो क्लियर. अब सपोज उसने यहाँ पर obj डॉट डिस्प्ले 1 को कॉल किया. आफ्टर दिस यू हैव टू अब डिस्प्ले 2 को कॉल नहीं किया. क्लियर. अब क्या प्रिंट होगा, ओनली वेन्यू, प्लेस एंड रिपोर्टिंग टाइम. वेन्यू, प्लेस एंड रिपोर्टिंग टाइम. सो नाउ अब आपको पता चला होगा दैट व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस, कि कॉलिंग करना क्यों इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि जब आप किसी फंक्शन को कॉल नहीं करते हो तो उसका डेटा यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा. क्लियर. अब सपोज़ आप कुछ भी कॉल नहीं कर रहे हो, यहाँ पे कुछ भी कॉल नहीं कर रहे हो. क्लियर है. अब क्या होगा, नथिंग विल प्रिंट, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ. नथिंग विल प्रिंट, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ. ठीक है. सो इट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट कि आप अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, यहाँ पे सपोज़ अगर मैं दे रही हूँ, सबसे पहले obj2 को कॉल कर लेते हैं. obj, ठीक है, डॉट डिस्प्ले 2 को पहले कॉल कर लो, इट्स ओके. और obj डॉट डिस्प्ले को बाद में कॉल कर लो. तो आउटपुट क्या होगा, आउटपुट ये होगा कि अब पहले क्या प्रिंट होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट, टीचर एंड बस, और उसके बाद होगा वेन्यू, प्लेस एंड रिपोर्टिंग टाइम. लेट्स एग्जीक्यूट दिस. देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, ये पहले हुआ. सो दिस इज कॉल्ड कॉलिंग. क्लियर. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज पीरियड. थैंक यू सो मच क्लास. बाय, टेक केयर.